Namaskaram to all, and a very warm welcome in 30th Parva of Prabodhini webinar series. So, before starting anything, let us seek the blessings of Lord Dhanvantari. So, we will start with Dhanvantari Vandana. नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरे वन्दित पादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दादारमीशम् विविधौषधीना धन्वन्तरिं रमानाथम् सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदप्रवर्तारम् वन्दे पीयूषदायकम् सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Dhanvantare Namaha. So, with all the blessings of Lord Dhanvantari, let us start today's Parva of Prabodhini webinar series. Our guests have arrived, all our explorers have arrived. So, let me just present a short intro about Prabodhini, and then we will be starting the scientific session. So, as we all know that Prabodhini webinar series is organized by Shri Babu Singh Jai Singh Ayurvedic Medical College and Hospital, Farokhabad, UP. And we all know that Ayurveda is the ancient system of science, which is about thousands of years old, and we have many ancient sages who described Ayurveda formulas. They describe the secrets of Ayurveda in the form of shlokas, in the form of formularies. So we all need a guide to guide us, to show us the right path, to explore these hidden secrets of Samhitas. And for that, we have arranged this Prabodhini webinar series. Since 2.5 years, we are doing this, and our patrons who are in support of us, Dr. Shailendra Yadav Sir, Chairman, JS Group, Dr. Sunita Yadav Ma'am, Director, JS Group, and Principal Sir, Dr. Manjunath NS, SBSJS, AMC, and H College, Farokhabad. We, the organizers of Prabodhini webinar series, Dr. Niharanjan Mahant, Associate Professor in Panchakarma, SSN Ayurved College and Research Institute, Dr. Preeti Mehsa, of course, me, Associate Professor from Kaichikisa Department, Shri University, and Dr. Sheenas PS, Assistant Professor from Panchakarma Department, Shri Babu Singh Jai Singh Ayurvedic Medical College and Hospital. And we had traveled such a long distance since April 2023. We had so many guests with us, guest speakers. They have shared their knowledge. They have shared everything that they had with them and guided us in our path. And today we have Dr. Chandrakumar Deshmukh sir, who is a specialist in Agni Karma and Vidya Karma, and is practicing in Pune. He is very famous and with very good hands, and he is healing so many patients there. We have seen him giving the presentations and views. I hope, sir, you remember we met before some days in Sri University also. Yes. So we welcome you, sir. And just 2 minutes more rules and regulations. Registration is mandatory for Prabodhini webinar. Registration is done through filling the Zoom forms provided in the link. After filling in the Zoom forms, you have to join the WhatsApp group Prabodhini through the link provided, as all the further proceedings will be intimated in the group.
On successful submission of the form, you will get a confirmation mail containing Zoom meeting joining link. And this link is individualized, it is separate for all. And joining by this link only proves your attendance in the webinar. Please join the webinar with the link provided. Your name and email ID in the Zoom form should be correct as it will be used in your e-certificate. So please be very careful while filling in your names and email ID, because sometimes if you use some other words, if you have spelling mistakes, it will be reflected in your certificates. So please be careful. E-certificates will be provided to all the participants attending the webinar more than 45 minutes. You will get your e-certificates through email ID registered with us within 7 days, and thus there is no need to share email IDs during the webinar sessions. With this, I end my presentation and I will welcome Dr. Chandrakumar Deshmukh sir, and I will request our moderator, Dr. Shinas BS, to welcome him to this webinar and take over the scientific session forward. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Om Sri Gurubhyo Nama, Om Dhanvantare Nama. With the blessings of God Dhanvantari, we reached the Prabodhini webinar series in the 30th episode today. Ma'am explained detailedly. I'm not losing the time of our respected Chandrakumar Deshmukh sir. Very happy to see you here, sir. Thank you so much for your entry. So I will give a mild brief about our speaker today. Dr. Chandrakumar Deshmukh sir, working as an Ayurveda consultant in Pune, continuing the work of that late Dr. R.B. Gogde sir, Vidyakarma and Agnikarma. He has conducted more than 200 workshops on Vidyakarma and Agnikarma through India and outside of India. More than 5,000 Ayurveda graduates come and learn his procedure per year. Research on autism and cerebral palsy, more than 300 patients till date is treated. More than 603 infertility cases were solving using Vidyakarma and teaching to the students. Conducted Vidyakarma workshops in almost every government and aided Ayurveda colleges in Maharashtra. Currently, sir is working as a consultant at Sri Vishmurthy Ayurveda Chikitsalaya, Vidyakarma and Agnikarma Research Center, Pune from last 11 years. Also consultant at Dr. R.B. Gogde Memorial Hospital, Nanepat, Pune from 2015. And sir is treating more than 36,000 patients per year, is a world record holder of Vidyakarma in International Book of Records. More than 5 lakh pain management treatments he has conducted. Treated 1,200 plus autistic and CP children. He is treating 704 critical infertility solved to date. More than also he is giving much more training to all the students, practitioners, everyone. So very heartily welcome to you, sir, to the Prabodhini webinar series. Very happy to get you here, sir. Thank you so much, sir. And over to you, sir. So Vidyakarma and Agnikarma, this is a fast Ayurvedic treatment. It is considered as a instant pain management treatment in Ayurveda, but it is a pain management treatment with this disease management treatment. The accuracy of Vidyakarma is very important in such cases. The father of Vidyakarma is Vaidya R.B. Gogte sir. He was a surgeon in Pune. He was the first student of the GFM degree. He was a surgeon. He used to do different types of researches in Ayurveda with the help of the modern techniques. So cancer, HIV, Ayurveda, everything he did. So we got Vidyakarma from him. ये विद्याकर्म जो वैद्य राबू गुप्ते सर से मिला है, ये जब वैद्य राबू गुप्ते सर चले गए, वी स्टार्टेड गुप्ते मेमोरियल फाउंडेशन एंड वी आर कंटिन्यूइंग डॉक्टर आरबी गुप्ते सर वर्क. आई ऑलवेज से दैट इट इज नॉट माइन, न मम एतत्, ये मेरा नहीं है, इट इज ऑफ आयुर्वेदा. और जो भी हमें सीखने को मिलता है, एवरीथिंग इज ऑफ आयुर्वेदा. सो आज आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो कंसिडर इट एज द जो हमारे ट्रेजर है आयुर्वेदा का, उसका एक कुछ पार्ट है. गोखले सर जब चले गए, वी स्टार्टेड विद्याकर्मा एज इट इज सीरीज ऑन यूट्यूब एंड विद्याकर्मा एंड अग्निकर्मा हमने पूरे भारत भर और भारत के बाहर लेने का प्रयास शुरू किया. वी ऑल्सो डिड वन पेटेंट ऑन विद्या सुवर्णशिला का. हमने ये गोखले सर के लिए ट्रिब्यूट बनाया है. मेरा नाम वैद्य चंद्र कुमार देशमुख. आई एम प्रैक्टिसिंग पुणे. वी हैव 3 क्लिनिक्स इन पुणे. हमारे ओपीडी दोपहर 12 बजे शुरू होती है, रात 12 बजे तक चलती है. डेली वी
treat more than 600 patients in our Chinchod OPD, and Nanapet OPD में more than 100 to 150 patient हम daily हम करते हैं. We also did world record on Vidyakarma, and it is international book of records में दर्ज हो चुका है ये. तो ये this is not possible due to, without the Guru Shishya Parampara. So Ayurveda is basically learned through Guru Shishya Parampara, and हमने देखा है कि आयुर्वेद कोई किसी ने तैयार नहीं किया है. आयुर्वेद शाश्वत है. जैसे ब्रह्मा जी ने भी बताया था कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुष्य वेद प्रजापतिम अजिग्रह, यानी ब्रह्मा ने स्मरण किया है आयुर्वेद का, ब्रह्मा ने भी क्रिएट नहीं किया है. तो आयुर्वेद पहले से ही है, सिर्फ हमें एक दूसरे से पास करना होता है. वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा के बिना नहीं होगा. वैद्य जमदग्नि सर, अमले सर, वैद्य अविनाश अमृतवार सर, इनसे हमने फर्स्ट ईयर से विद्या ग्रहण करना शुरू किया, और इन्हीं लोगों ने मिलकर वैद्य आरबी गोप्टे सर के यहाँ पे भेजा. आरबी गोप्टे सर के यहाँ पे जब हम जाने लगे, तो वी फाउंड द वंडर्स इन द आयुर्वेदा. जो पेशेंट चल नहीं पाते थे, जो पेशेंट को घुटने दुखते थे, जो पेशेंट को साइटिका होता था, रिनल कैलकुलर होते थे, ऐसे सारे पेशेंट में विद इन अ स्पैन ऑफ कुछ मिनट में गोप्टे सर रिजल्ट देते थे. तो दिस ट्रेजर सीखने के लिए हम गोप्टे सर के यहाँ चले गए. कहते हैं ना, किसी का हाथ सर पे होना चाहिए, बिकॉज उसके बगैर आप आयुर्वेद में कुछ नहीं कर सकते हो. तो ये विद्याकर्मा का हाथ हमें मिला, और वी स्टार्टेड doing Vidyakarma from 2013 and Samarpan from 2015. यानी everything is treated with Vidyakarma at our clinic. This is our OPD at night. ये हमारी OPD है at night. It runs till midnight. Yesterday also we treated patients till 1 a.m. Patients come from everywhere. छोटे छोटे बच्चे होते हैं. आई एम शोइंग इज दिस बिकॉज आयुर्वेद ओपीडी इतनी होती है, ये सौभाग्य होता है अगर आयुर्वेद का वैभव देखना है. सो दिस इज आवर प्लेस, यू कैन कम एंड सी. इतने छोटे छोटे बच्चे रात 1 बजे तक रुके होते हैं. इज दिस सक्सेसफुल प्रैक्टिस? ये सक्सेसफुल प्रैक्टिस है क्या? नहीं. सक्सेसफुल की डेफिनेशन ये होती है, एट द नाइट इफ यू आर फीलिंग गुड, इफ यू आर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम बेस्ट एंड हमने कुछ आज अच्छा किया है और हमने किसी का लाइफ में बदलाव किया है, ये फीलिंग अगर आपको रात में आती है, देन दिस विल बी द सक्सेसफुल प्रैक्टिस. पुणे में मैक्सिममली आयुर्वेद प्रैक्टिशनर ज्यादा है महाराष्ट्र में, बट मुझे ऐसा लगता है कि विद द हेल्प ऑफ विद्याकर्मा, बिकॉज एवरी पेशेंट नीड्स इंस्टेंट सम रिजल्ट. और आयुर्वेद प्रैक्टिशनर आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के पीछे क्यों होते हैं? क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं. आई ट्रैवल अ लॉट फ्रॉम कन्याकुमारी टू द टिल पश्चिम बंगाल. हमने सारे कॉलेजेस में जाके देखा है, बट एक्सेप्ट महाराष्ट्र देर इज मच देर इज लेस प्रोपोगंडा ऑफ आयुर्वेद प्रैक्टिस. नॉर्थ में क्या होता है, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स मीन्स 4 सूत्र वाला प्रैक्टिशनर होता है, लेकिन ट्रेडिशनल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जैसे कि पंचकर्मा, विद्याकर्मा, अग्निकर्मा, यहाँ पे हम डेली 500 पेशेंट निकालने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिशनर हमें देखने को नहीं मिलते. तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जस्ट गो एंड सी पेशेंट्स. कहीं पे भी देखने को मिलेंगे, वहां पे पेशेंट देखने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर होता नहीं. वी आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, सो फॉर दैट वी मस्ट सी द पेशेंट. जैसे कि अपेंडेक्टॉमी हमें करनी है, इफ वी प्लान अपेंडेक्टॉमी, देन वी मस्ट लर्न अपेंडेक्टॉमी, वी मस्ट मेक नोट्स ऑफ अपेंडेक्टॉमी, देन वी मस्ट असिस्ट अपेंडेक्टॉमी, और उसके बाद में 1000 असिस्ट होने के बाद देन वी कैन गो फॉर अपेंडेक्टॉमी सर्जरी. वैसे विद्याकर्मा, अग्निकर्मा इज अनुशस्त्र. Our Ayurveda is a Guru Shishya Parampara. Then you must observe the patient. Every disease, minimum 100 patient you must observe, and after that you go for Yoga Abhyas, and after Yoga Abhyas you can go for this procedure. Successful definition is that at the night you feel very good because you treated some drastic, severe patients,
ऐसा अगर आपको रात में लगता है देन यू विल बी सक्सेस। व्हाट हैपेंड सम इयर्स, ये ट्रस्ट के बिना नहीं होता है, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है खुद के ऊपर। क्या हुआ था, एक बच्चा आया था पिछले साल में, और ये बच्चे को माउथ फ्लोटिंग हो रहा था, उसने वो इंगल्प कर लिया और उसका राइट लंग कोलैप्स हो गया। ऐसे समय में न्यूरोपेडियाट्रिक ने कहा कि ये मे बी अ केस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी बिकॉज ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी एंटीबायोटिक, ऐसे एंटीबायोटिक से सपोर्ट नहीं कर रहा था। देन आयुर्वेद के लिए अप्रोच हो चुके हैं। आयुर्वेद की हमने आईसीयू में जाके विद्याकर्मा अग्निकर्म चिकित्सा की। इन आईसीयू भी uh, हम आईसीयू में जाके विद्याकर्मा अग्निकर्म करते हैं और बच्चों में रिजल्ट देते हैं। मुझे ये कहना है कि ये एक्यूरेसी के बिना नहीं होता है, और एक्यूरेसी के लिए हमें छोटे बद्ध में बदलाव आते हैं। तो जिस बच्चे को कहा गया था ही विल नॉट सिट प्रॉपरली, ही इज सिटिंग प्रॉपरली, उसको कहा था ही विल नॉट ईट, ही विल शो डिलेड माइलस्टोन, सो ही इज शोइंग नॉर्मल माइलस्टोन। वो बैठ नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा कहा गया था बिकॉज ड्यू टू द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी चेंजेस, सो ही इज डूइंग एवरीथिंग। सो आईसीयू के पेशेंट भी आते हैं। जैसे बिफोर 2 months व्हाट हैपन, व्हेन एम्बुलेंस केम, और एम्बुलेंस आने के बाद वी सॉ पेशेंट हैड स्ट्रोक, लेफ्ट साइड स्ट्रोक। और स्ट्रोक आने के बाद उसको किसी एलोपैथी के डॉक्टर ने रेफर किया था बिकॉज ही वॉज पुअर। एंड वहां पे वो उन्होंने सुबह 8:30 बजे स्ट्रोक आने के बाद 12 बजे रेफर किया। जैसे ही आने के बाद हमने एनालाइज किया, वी डिड विद्याकर्मा एंड अग्निकर्मा ऑन पेशेंट, एंड वी स्टार्टेड द आयुर्वेदिक मैनेजमेंट इन दिस कंडीशन। रेगुलरली ऐसे एम्बुलेंस आते हैं इमरजेंसी केसेस में, हम वहाँ पे विद्याकर्मा अग्निकर्मा करते हैं। आयुर्वेद के जो सूत्र होते हैं, जैसे कि स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाती विरेचनम हम देखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी वेरिएशन क्या होता है, इमरजेंसी मेडिसिन क्या होती है, ऐसे हम कार्य करते हैं और वहां पे पेशेंट के ऊपर देते हैं। आई एम शोइंग दिस बिकॉज आई एम शोइंग दिस बिकॉज Ayurveda works in emergencies also. Regularly, more than 30 to 40 emergency cases come to our clinic, and we treat with the only Ayurveda, or we get the result. We do also, we take a radiological help, modern help. We do hourly with the medicine also, Ayurvedic medicine, and we get this kind of result. So वो पैरालिसिस का पेशेंट आया था और उसको रात तक हमने उसको रिजल्ट दिया था, और आफ्टर 1 month वी फाउंड दैट दिस इज कंप्लीटली रिकवर्ड, और सोनोग्राफी में हमें मिला है। तो ये आयुर्वेद की स्पीड होती है, एंड फॉर दिस स्पीड विद्याकर्मा और अग्निकर्मा हेल्प्स अ लॉट। तो जैसे कि एक पेशेंट था, उसको ट्रॉमा हो चुका था, किसी ने लाफा मारा था और लेफ्ट आईलिड ड्रॉप हो चुकी थी और टोसिस भी हो चुका था। और देख सकते हो आप, उसका आई भी थोड़ा सा स्पिंट में चले गया था ड्यू टू द ट्रॉमेटिक इंजरी। एट द सेम टाइम वी डिड विद्याकर्मा एंड अग्निकर्मा, within a span of 24 hours she got result, and after 1 day her eyelid became normal. This kind of treatment हम result gives through the Vidyakarma and Agnikarma. So while doing Vidyakarma Agnikarma, you must follow the accuracy. Accuracy आपको follow करनी पड़ेगी, because without accuracy nothing happens. कहीं पे भी टोचना इसको विद्याकर्म नहीं कहा जाता। केन प्रकार है ना, विद्या करोति मानव, ऐसा हो चुका है अभी। कोई भी कहीं पे भी सुई लगाता है उसको विद्याकर्मा कहा जाता है, लेकिन दिस इज नॉट ऑथेंटिक प्रैक्टिस। तो अवॉइड दिस, दिस इज नॉट विद्याकर्मा। ये कहीं पे भी मैंने देखे थे इंटरनेट पे, तो दिस इज नॉट विद्याकर्मा, दिस इज नॉट विद्याकर्मा, दिस इज नॉट विद्याकर्मा, इट इज परफेक्ट आयुर्वेद मैनेजमेंट। अगर हम इमरजेंसी में विद्याकर्मा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेप्थ कितनी है विद्याकर्मा की। दिस इज द पेन मैनेजमेंट। तो एवरी प्रॉब्लम का आंसर मनी होता है। अगर आपके पास पैसा होता है तो रिलेशन, रिस्पेक्ट, स्टेटस, सोसाइटी, लव, पावर सब आपके सामने झुकते हैं। सो इसका इम्बैलेंस भी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बैलेंस रहेगा तो लाइफ में हम कुछ अचीव कर सकते हैं। और ये विद्याकर्मा अग्निकर्मा का बैलेंस अगर आपको चाहिए तो यू शुड लर्न ऑल द मर्मस।
मारेंथिति मर्मण। मर्म को दबाना ये आयुर्वेद में बताया नहीं गया है। आजकल एक्यूप्रेशर वाले लोग मर्म चिकित्सा बोल के कुछ करते हैं। मर्म चिकित्सा इज वेरी डिफरेंट, इट इज मर्माघात चिकित्सा। आयुर्वेद में कहा गया है कि वहां पे प्राण होते हैं, इसलिए मर्म पे आघात नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑर्गन्स आर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मर्म। सो वात पित्त कफ सब होता है, तो मर्म सो अभियता तस्मात् न जीवंती शरीर न। मर्म के ऊपर आघात होने के बाद शरीर जिंदा नहीं रहता है। सो अवॉइड टचिंग मर्मा, अवॉइड प्रेसिंग मर्मा। अगर आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की जो मृत्यु हो चुकी थी, वो क्षिप्र मर्म के ऊपर आघात होने के बाद बताया गया है कि अंगुष्ठ अंगुले मध्य क्षिप्र नाम तत्र विद्यस्य आक्षेपकनम वर्णन च। ऐसा मर्म के बारे में बताया गया है कि ये सद्य प्राणर है, ये कालांतर प्राणर है, ये वैकल्पिक प्राणर मर्म है। तो अगर सद्य प्राणर मर्म के यहाँ पे आघात होता है तो मृत्यु हो जाती है, कम आघात होगा तो वैकल्पिक हो जाता है, उससे ही कम आघात हो गया तो कालांतर प्राणर मर्म हो जाएगा। इसका मतलब आपको आघात नहीं करना है मर्म के ऊपर, तो मर्म के ऊपर प्रेशर नहीं देना है, मर्म को अवॉइड करना है, मर्म के ऊपर सर्जरी नहीं करना है, मर्म के ऊपर अग्निकर्म नहीं करना है, मर्म के ऊपर विद्या कर्म नहीं करना है। क्योंकि मर्म ये क्या होते हैं, मांसशिरा स्नायु संधि अस्ति सन्निपाता तेषु स्वभावतः एव विशेषण प्राणाः तिष्ठन्ति। मर्म जो है आघात होने पर तत्काल मृत्यु होते हैं, इसलिए मर्म शल्य विषय का अर्धा भाग है। इसलिए चतुर्वैद्य की चिकित्सा से अगर मर्म पे आघात होने के बाद भी वैद्य पेशेंट जीवंत रहता है, लेकिन वो विकलांगता हो जाती है, इसके मर्म के ऊपर आघात होने नहीं देना है। अतः मर्मों की रक्षा जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है, ऐसा कहा गया है हमारे ग्रंथ में। सो यत्र पीड़िते स्पंदिते रूप से तत्मर्म ऐसा बताया गया है, तो उसका संरक्षण करना है, उसको डैमेज नहीं करना है, ध्यान में रखना है। भगवान अर्जुन को भगवत गीता बताते समय भी मर्म का उल्लेख आया है। दुर्योधन को मारते समय भी लोहिताक्ष मर्म का उल्लेख आया है। कर्ण के बारे में हमें हृदय मर्म के, नाभि मर्म के बारे में उल्लेख आया है। भीष्म पितामह के यहाँ पे 107 मर्म का उल्लेख आया है, और वहां पे मर्म का महत्व बताया उन्होंने। जैसे कि शिखंडी के बाण थे वो मर्म के ऊपर नहीं थे, अर्जुन के बाण मर्म के ऊपर थे, तो वो मर्म का संरक्षण भी भीष्म पितामह बताया। हमें लर्न करने के लिए यू आर नेवर लेट, फर्स्ट स्टेप होती है लर्निंग होती है। तो ध्यान में रखना, बी स्मार्ट, यू आर नॉट ओनली द फिश इन द टैंक, सो बी स्मार्ट, नो वन केयर्स अबाउट द एफर्ट्स, बट सबको रिजल्ट चाहिए होते हैं। सो लुक क्लोजर, आयुर्वेद इज नियर यू, start Ayurveda practice, do Ayurveda practice, think Ayurveda, think through Ayurveda, think for Ayurveda. So avoid common mistake. First common mistake is Ayurveda don't do anything. आयुर्वेद से रिजल्ट नहीं आते, मैं आयुर्वेद सीख नहीं सकता हूँ, मैं तो हमारा तो हो चुका है, उम्र हो चुकी है, हम यहाँ कॉलेज में है, ऐसा ऐसा, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक होती है। तो ऐसा कोई एज नहीं होता सीखने के लिए, कोई एज नहीं होता प्रैक्टिस शुरू करने के लिए, कोई एज नहीं होता करने के लिए। सो यू मस्ट अवॉइड कॉमन मिस्टेक। आयुर्वेद से इमरजेंसी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद इमरजेंसी में भी होता है, जैसे मैंने अभी बताया, हमारे यहाँ पे डेली मोर देन 30 to 40 इमरजेंसीज आती है, जैसे फिट से लेके किडनी के प्रॉब्लम से लेके अर्थराइटिस, माइग्रेन से लेके हेड इंजुरी से लेके सारे इमरजेंसी आते हैं, वी वर्क विद दैट। सो बी शार्प, आपको देखना है, रिमेम्बर एवरीथिंग इज फॉर यू, आपके जो गुरु है आपके लिए जल रहे हैं। सो एवरीथिंग इज फॉर यू विद द कर्म। माय टॉपिक इज विद द कर्म, and there are two chapters in Sesur Samhita, Valkar Samhita. The name of the chapter is Athatah Siravadadhyam Vakyasyama, and the second chapter is Agni Karma Vidyadhyam Vakyasyama. See, with Agni Karma chapter is in Sutrasthana and Siravadadhyaya is in Sharirasthana. So, firstly, Agni Karma Adhyaya, जैसे कि आप देखते हो कि इफ यू गो टू द एमबीबीएस डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, ही विल चेक द वेट एंड देन एज देखेगा बच्चे का, और आफ्टर दैट ही विल गिव द प्रॉपर डोज। सो आप इन कर्नाटका, इन कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कहीं भी जाओ, द डोज ऑफ द अमिकासिन और डोज ऑफ द एंटीबायोटिक विल बी द सेम। व्हाई? बिकॉज दिस इज स्टैंडर्डाइज, बिकॉज दे नो ऑन द टिप ऑफ द टंग दैट इज दिस इज गुड, दिस इज बैड, ये इनको पता होता है। सो आयुर्वेद वैद्य यहाँ पे मिस करते हैं, आयुर्वेद का ज्ञान इतना आघात है। सो बी योर परफेक्ट परफेक्ट पर्सन ऑफ वन डिसीज, और एक इस पे ही काम करो, और वहां पे वो सारी बातें टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप उसमें महारत प्राप्त कर सकते हो। सो बेसिकली यूनिट सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, और यूनिट वाचन, आपको रेगुलर वाचन होना चाहिए।
That's why we started Bhagavad Vachana in the morning on the YouTube. हम डेली लेते हैं और जब भी हमें समय होता है हम डिस्कस करते हैं डेली के केसेस। ये हम हमारे खुद के लिए करते हैं, तो आपने भी करना चाहिए। There is Ashtavida Shastra in Ayurveda, Chedana, Vedana, Lekana, Vedana, Aishana, Arana, Visravana, Sivana. So, Vedana is to puncture, and for the puncturing, there are 5 types of different Shastra: Uttarika, Vrihimukha, Ara, Vetaspatra, and Suchi. So, that Suchi is the needle, and this needle we use in the Vidyakarma. You can see there are different types of diseases. Every disease comes in the वो विद्याकर्मा के इसमें आ जाता है, and we can give result with the विद्याकर्मा in every diseases. So this is the needle we use. ये इतनी सस्ती होती है कि 70 रुपए में आपको एक बॉक्स आ जाएगा, 100 नीडल आ जाएगी. So you will treat the 100 patient with the help of only 70 rupees. अग्निकर्मा, अग्नि क्षारात अग्नि गरिया, अग्नि जो है क्षार से भी श्रेष्ठ होता है. So अग्निकर्मा चिकित्सा, if you know अग्निकर्मा, then you can do proper. So अग्निकर्मा is not only pain management. Say it is not only cutting treatment, it is also disease treatment. सो अग्निकर्म के 3 प्रकार होते हैं. फर्स्टली जो कॉस्मेटिक होता है वो निकाल देना है, सर बर्न करके निकालना होता है. सेकंडली पेन मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पे पेन है वहां पे हम अग्निकर्म करते हैं. और थर्डली होता है कि डिसीज मैनेजमेंट के लिए अग्निकर्म होता है, एनाटॉमिकल करेक्शन के लिए अग्निकर्म होता है. दीज आर 3 टाइप्स ऑफ अग्निकर्म. देखिएगा कि व्हाइल डूइंग अग्निकर्म, अग्नि ही द्रव्याश्रय न दहती. तो द्रव्य का आश्रय इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इस स्क्रू निकालने के लिए हमें प्रॉपर वो टूल की जरूरत होती है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्निकर्म इंस्ट्रूमेंट इन द आयुर्वेदा. पिप्पली अजाशकृत गोदंत शरशलाका त्वगता नाम, इतर लोहा मांसगता नाम, क्षौद्र तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थिगता नाम. ऐसा हमें ग्रंथ में बताया गया है. जहाँ पे जो करना है वो बताया गया है. सो accuracy is very important. Depth of the Agnikarma is very important. So this is a Suvarna Shalaka. This is a patented Shalaka. We made Gupta sir made it, and we got a patent from Government of India. It is a 14 carat Shalaka. Dimension is 7 centimeter and 2 mm thick. This is a Suvarna Shalaka. This is a Raupe Shalaka. The metal got changed. Metal बदल गया है, तो उसका मोड ऑफ एक्शन भी बदल जाएगा और डिसीज भी बदल जाएंगे. दिस इज अ ताम्र शलाका, इज अ राउंड शलाका. इसके बाद दिस इज नाग शलाका. इट इज ओनली फॉर आई डिसीजेस. सर्वनेत्र रोग हरि शलाका. सर्वनेत्र रोग हरि शलाका ओनली प्रसादन मात्रेन वी कैन गिव रिजल्ट इन सम डिसीजेस. So there are different types of shalaka. This is the Haridra. It is usually in the Kamala, jaundice, Bhaupita Kamala. This is the Mritika shalaka. We use this in the calcaneus for Parshni Shula, Asti Vruddhi. This is a lower shalaka. We use this shalaka in the कॉर, कदर, इस पे हम इस्तेमाल करते हैं. मेरे पास शलाका नहीं है, आई डोंट हैव शलाका, ऐसा नहीं कहा जाता है. तो प्रधान यंत्र हमारा हस्त होता है. सो डूज एंड डोंट्स इन विद्याकर्म अग्निकर्म. जो टू ओल्ड पेशेंट है, प्रेग्नेंट है, इन्फेंट पे उसके ऊपर नहीं किया जाता है रक्त मोक्षण. सो बट वी कैन डू परफॉर्म द विद्याकर्म इन ऑल दिस पेशेंट. मर्म के ऊपर हाथ नहीं लगाना है, मर्म को टच नहीं करना है, मर्म को दबाना नहीं है, ध्यान में रखना. एक मैं यहाँ पे एक कोटिंग करना चाहता हूँ कि हमारे ग्रंथ में कुर्म पुराण नाम का एक पुराण आया है. जैसे कि दशावतार हो चुके हैं भगवान श्री विष्णु के, तो एक एक अवतार का एक एक पुराण है. जैसे कि वराह पुराण है, गरुड़ पुराण है, श्री कृष्ण के बारे में है, राम के बारे में है. वैसे ही कुर्म यानी कछवा जो है उसके बारे में पुराण आया है, कछवा के अवतार में. तो कुर्म पुराण के यहाँ पे एक मर्म के बारे में कोट आई है. वो क्या है कि पर क्षेत्र गा दहंती न चाचित. किसी के क्षेत्र में अगर गौ माता चल रही है तो ये किसी को बताना नहीं. न चाचित न संवत्सर सूत की नाम. कोई भी सूतकी व्यक्ति है जिसके घर में मृत्यु हुई है, उसके साथ सोना नहीं है, उसके घर में सोना नहीं है, हम उसके घर में रहना नहीं है. हम बाहर जाके उसको दे सकते खाना पीना, लेकिन उसके साथ नहीं रहना है. अगर रहोगे तो उसके जो 7 जन्म के दोष है वो आपको लगते हैं, ऐसा ग्रंथ में वर्णन आया है. उसके आगे ही बताया गया है न किंचित मर्म में संस्पृशेत. किसी के भी मर्म को स्पर्श नहीं करना है. सो
मर्म को स्पर्श नहीं करना है, मर्म के आजू बाजू में बताया गया है। सो विद्या कर्म and अग्नि कर्म मर्म पे नहीं होता है, मर्म के आजू बाजू में होता है। डोंट यूज इन वर्षाभ्र निशागम। सो अगर आपको पता नहीं है फिर भी नहीं यूज करना है, आपको ये सॉरी लर्निंग करनी है, ध्यान में रखना। एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज टेल अबाउट द एक्यूरेसी। जैसे इसको टाइम देना पड़ेगा, आफ्टर सम मंथ्स यू विल गेट इन द एक्यूरेसी पीरियड। वी आर नॉट ऑल इन द सेम बोट, वी आर ऑल इन द सेम स्टॉर्म। तो वहां पे ध्यान में रखना, आयुर्वेद के प्रति हेट बहुत था पहले। आयुर्वेद से ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, आयुर्वेद को दबाने के लिए सारी शक्तियां काम करती है। लेकिन ध्यान में रखना, वी आर इन द सेम स्टॉर्म, बट हम एक बोट पे नहीं है, तो हमें काम करते रहना है। बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल फाइंड योर बोट विद द हेल्प ऑफ विद्या कर्म अग्नि कर्म। और विद्या कर्म अग्नि कर्म सीखते समय एक इफेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं, एक महीने में ऐसा हो जाता है कि उनको सब आता है, आई नो इट ऑल ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली जब करने को जाओगे तो वो डाउनफॉल हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। ये ऐसा इफेक्ट होता है। यहीं पे मैक्सिमम बच्चे जो है टूट जाते हैं, आयुर्वेद के प्रति आना छूट जाते हैं। लेकिन वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस उसके ऊपर जाना चाहिए, ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट है। और आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या करूं, ऐसी डिप्रेशन की जब परिस्थिति आती है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टे। वहां पे चिपकने का अच्छा समय होता है, और वहां से आपको धीरे 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 कुछ बातें समझ में आती है, स्टार्टिंग टू मेक सेंस। एंड आफ्टर सम टाइम इट्स गेट कॉम्प्लिकेटेड। हम अभी भी सीख रहे हैं, सो इट टेक्स टाइम। तो ये ध्यान में रखना, हम करते समय ये इफेक्ट में आयुर्वेद का रास्ता भूल नहीं जाना है। विद्या कर्म अग्नि कर्म होमवर्क स्नेहादि भी क्रिया हो गई, ऐसा थिरावैद के बारे में बताया गया है। तत्रैया सूक्ष्म शस्त्र विद्या है, अव्यक्त कर्म शब्द ये अवैध सिरा के बारे में बताया गया है। तो ध्यान में रखना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहाँ पे प्रिंसिपल फेनोमेना होते हैं। तो यू मस्ट नो एनाटॉमी, मर्म, सरफेस एनाटॉमी, थिरावैद, अग्नि कर्म अध्याय। ये एक सरफेस एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा। आई एम पाल्पेटिंग अ पेशेंट, दिस इज द पेशेंट ऑफ sciatica, so I am going to palpate the origin of the sciatica। ये देखते समय मैंने ऊपर से लग रहा है कि सिर्फ मैंने देखा है। सो आपको पाल्पेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूरी तरह से वहां सरफेस एनाटॉमी आनी चाहिए। ये हो गया थ्योरी के बारे में। आई विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल्स। क्षिप्र मर्म, पैर में ऐसा एक मर्म है, पादस्य अंगुष्ठ अंगुली मध्य क्षिप्रम नाम तत्र विद्यस्य आक्षेपकनम मर्मम। वहां पे आक्षेपक होने के बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये आक्षेपक एक वातज व्याधि है, नानात्मक व्याधि है, और उसके बाद मृत्यु होना ऐसा लिखा है। तो आक्षेपक यानी कन्वर्जन ऐसा लिखा है। तो वी मस्ट कंसिडर वहां पे कौन कौन से टेंडन है, वहां पे कौन से आर्टरीज है, कौन से वेन्स है। अगर ये हम देखते हैं और वो बाद में हमें समझ में आता है, तो ये विद्याकर्म होता है। आवाज है तो क्षिप्र मर्म पाद से अंगुष्ठ अंगुली मध्ये क्षिप्र नाम मर्म होता है। और तत्र विद्ध से आक्षेपकनम मर्मम ऐसा बता दिया गया है। तो ये कालांतर प्राण मर्म है, स्नायु मर्म है। यहाँ पे सौम्य अग्नि ऐसा, वहां पे शक्ति बताई गई है, भौतिक गुण बताए गए हैं। तो पादर्श पाद, चिप्प विसर्प वात वात कंटक विजर्पिका पाददारी, ऐसे यहाँ पे वर्णन आया है क्षिप्र मर्म के यहाँ। विश्व का विद्ध कर्म होता है, एल्बो जॉइंट के ऊपर और नीचे चार चतुरंगुली ये वेदन कर्म किया जाता है। तो ये रेडिकुलोपैथी में विद्या कर्म होता है। जानुसंधि से ऊपर या अथवा चतुरंगुली कुदरत में विश्वासम ऐसा बताया गया है। तो जानुसंधि के ऊपर और नीचे चतुरंगुली एग्जैक्ट पोजीशन लेके 90 डिग्री में हम वहां पे करते हैं। और विश्वची में यानी रेडिकुलोपैथी में हाथ के या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में एल्बो जॉइंट के ऊपर और नीचे आया है, तो इसकी एक्यूरेसी होती है डिसीज के अकॉर्डिंगली। हमारे आयुर्वेद में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजेज, दैट इज द प्रतितुनी एंड तुनी। तो इट एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ द पेन ऑफ द मसल्स और इंटेस्टाइन। जो भी पेन के डायरेक्शन के अनुसार भी हमारे यहाँ पे डिसीज आए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू द एवरी पेशेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द पेन, डायरेक्शन ऑफ द डिसीज। सो अकॉर्डिंगली वी कैन परफॉर्म द विद्या कर्म, बिकॉज विद्या कर्म हम
we cannot directly give exam of the 10th class. So we must go from first, second, third. This is a sequence. So in each Vidya Karma, there is a sequence. We cannot go directly with the karma, random with the karma. So we must go for accuracy. So this is related to the Grudrasi. जानु संदेशी उपरिष्टात अधोवा, ऊपर या नीचे, वहां पे वेदन कर्म कर रहे हैं गुप्ते सर। ये करते समय एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जानु संदेश से अधो उपरिवा, यानी अधो और ऊपरी चतुरंगुले, लैटरली ये ऐसा विद्या कर्म होता है। व्हाट हैपेंड, एक पेशेंट है मेरे पास कुछ साल पहले, और ही वाज अनेबल टू वॉक, वो चल नहीं पा रहा था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सडनली कॉम्प्रेस हो चुकी थी वहां पे साइटिका नर्व, कुछ सामान उठाया था, और आफ्टर टेकिंग 15 days ऑफ पेन किलर्स, एनाल्जेसिक एंड ट्रैक्शन, स्टिल ही वाज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली। So he came to our clinic and we started Vidya Karma and Agni Karma. So Vidya Karma is at the place above and below Chaturangule, but Agni Karma is according to the nerve root origin. So L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3. These types of roots are available on the back. So where is the compression? Where is the pathology? According to that, if the patient is of periparpis syndrome, yeah, completely disbulging, yeah, degeneration. Accordingly, we perform the Vidya Karma and Agni Karma. And after performing the Vidya Karma and Agni Karma, patient got result within a span of minutes, which he was suffering from 14 days or more. So after second setting and after third setting, he got complete relief. So that is the magic of Vidya Karma and Agni Karma. Vishwachi. If there is a radiculopathy, then we go for Vidya Karma and the trapezius method. So हमारे यहाँ पे प्राणवास प्रोसेस के बारे में बताया गया है। अगर छींक आती है और उसका अवरोध हम करते हैं तो वहां पे मन्यास्तंभ कहा गया है। सो इन मन्यास्तंभ वी डू विद्या कर्म एंड अग्नि कर्म ऑन द ट्रेपेजियस मसल। तो वहां पे सूर्य अवलोकन विधि बताई गई है। जो सूर्य अवलोकन विधि से फायदा मिलता है वही हमारे ट्रेपेजियस मसल के विद्या कर्म से हमें फायदा मिलता है। जिह्वा रोग है, जिह्वा मूले विदित, अधो जिह्वायाम, जिह्वा मूल के ऊपर वेदन कर्म होता है। बेस ऑफ द टंग वहां पे वेदन कर्म होता है। नासा डीप लिंगुअल वेन है, जस्ट मिडिल इसका वेदन कर्म होता है जिह्वा रोग में। नासा रोग है, नासाग्रे विदित। नासा रोग जो होते हैं एनोस्मिया, सांस नहीं ले पा रहे, पॉलिप है नाक में, वहां पे गंध नहीं आ रही है, ऐसे समय में नासाग्रे वेदित होता है। और नासा आना है, यहाँ पर अगर डीएनएस होता है तो उपनासिक के वेदित होता है। नेत्र विकार में भी उपनासिक का वेदन कर्म करते हैं वहां पे। छोटे छोटे बच्चों में हमें बदलाव दिखते हैं और छोटे छोटे बच्चों में हम वेदन कर्म करते हैं। जैसे कि माउथ ब्रीदिंग की वजह से अगर वेट नहीं बढ़ रहा है, ऐसे छोटे बच्चे में नासा अग्र वेदन कर्म बहुत फायदेशीर होता है। कभी कभी वहां पे विद्या कर्म से रिजल्ट नहीं आता है तो वी कैन सी द पॉलिप इनसाइड द नोज। सर फॉर पॉलिप वी गो फॉर अग्नि कर्म। अपवात जैसा एक भी डिसीज नहीं होता जो भल्ला तक से ठीक नहीं होता है। तो भल्ला तक का हम तेल निकालते हैं और वो तेल निकाल के वो जस्ट 1 ड्रॉप पिंचिंग होता है नासा के जो पॉलिप है उसके ऊपर हम लगाते हैं और वो पॉलिप कम हो जाता है। मोस्ट बेनिफिशियल युद्ध कर्म इन आयुर्वेद प्रैक्टिस, दैट इज अंगुष्ठ मूल्य वेदे। जो सिल्वर रिंग है जो वहां पे टच होती है उसको अंगुष्ठमूल वेदन कर्म कहते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शब्द क्या है, अंग विपर्यत, लेफ्ट को है तो राइट में करना है, राइट को है तो लेफ्ट में करना है। डायरेक्टली कहीं पे भी विद्या कर्म नहीं करना। तो ये विद्या कर्म के लिए जगह बताई गई है, यहाँ पे अंगुष्ठ मूल एग्जैक्ट है, तो अंगुष्ठ मूल के ऊपर हम वेदन कर्म करते हैं और ऐसे स्टोन हमें निकल के आते हैं। मैक्सिमम 46 mm के कैलिकुला हमने देखे हैं। मॉडर्न डॉक्टर्स कहते हैं कि 4-5 mm के ऊपर कल्कुला है तो आपको सर्जरी के लिए जाना है। तो वो पैसे के लिए होता है सारा। हमने देखे 46 mm की कैलकुला फूटते हुए देखे। तो यू मस्ट एक्यूरेटली डायग्नोज पेशेंट, यू मस्ट एक्यूरेटली गिव द मेडिसिन, यू मस्ट एक्यूरेटली टेल द पेशेंट टू फॉलो द पथ्य, यू मस्ट accurately do the vidya karma, if possible basti, if possible different types of Ayurvedic treatment which are helpful in the calculus. So accuracy is very important. Anusandhi, there is a
one Vidya karma related to the Dhanasandhi. In apasmara, galavikara, tonsillitis, pharyngitis, in all these conditions, this Vidya karma is helpful. ध्यान में रखना, अभी क्या हुआ है कि सिलेबस चेंज हो चुका है। ज्वर बन गया है फीवर, पांडु बन गया एनीमिया, कामला बन गया है जॉन्डिस। सो ऐसा आयुर्वेद नहीं होता है। स्टिल इन आयुर्वेद कॉलेजेस ऐसा सिलेबस बदल गया है। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी आयुर्वेद टीचर एंड प्रैक्टिशनर टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द आयुर्वेदा। बिकॉज हो क्या जाएगा, बाद में मॉडर्न का कंपटीशन में आयुर्वेद मॉडर्न बन जाएगा, आयुर्वेद आयुर्वेदा बन जाएगा। एंड बेसिक डायग्नोस्टिक मेथड, आयुर्वेदिक हेतु, निदान, शल्य, क्रियाकाल, ये सारे भूल जाएंगे स्टूडेंट। नए स्टूडेंट का सिलेबस इतना डेंजर हो चुका है कि अभी हम क्या कहते हैं उसको, कि पीरियोडिक असेसमेंट हो चुका है। पेशेंट को, स्टूडेंट को बाहर जाके प्रैक्टिकल सीखने का मौका नहीं मिल रहा है, और वे जस्ट लाइक स्कूल बन चुका है। तो देर में बी डिफरेंट रीजंस बिहाइंड दैट, बट आयुर्वेद को रखने के लिए आप हम सब की जिम्मेदारी है कि आयुर्वेद की इंटीग्रिटी हम बनाए रखें, बिकॉज इट इज अ प्रेशियस साइंस, इट इज एक्यूरेट साइंस। ध्यान में रखना। एब्डोमिनल पेन में हम वेदन कर्म करते हैं, अर्धवरी वेदन कर्म होता है, अंगुष्ठोदर प्रमाण में होता है। एंड रादर देन अपेंडिकुलर पेन, हम अम्बिलिकस के नीचे चतुरंगुली वेदन कर्म होता है यहाँ। श्वास अस्थमा, श्वास के पेशेंट बहुत सारे आते हैं। तो इंद्रवस्ती मर्म जो है, वहां पे आघात होने के बाद लोही तक शयन मर्मम से कहा गया है। तो इंद्रवस्ती मर्म के यहाँ पे रक्त संचिति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पैर में जो इंद्रवस्ती मर्म है इसको सोलियस मसल कहा गया है, इसको सेकंड हार्ट कहा गया है। और हाथ में होता है वो रक्त का स्थान होता है, और उसके ऊपर जो है कफ का स्थान, नीचे का जो है वात का स्थान होता है। तो कफ वात जब जब श्वास होता है तब तब इंद्रमस्ती के ऊपर नीचे वेदन कर्म किया जाता है, क्योंकि लंग्स की उत्पत्ति जो है रक्त फेन प्रभो फुफ्फुस ऐसा हुआ है, रक्त के फेन से रक्त लंग्स की उत्पत्ति हुई है। और वहां पे अगर कुछ डिफिकल्टीज आती है श्वास जैसी, तो हम ये विद्या कर्म के पॉइंट वहां पे इस्तेमाल करते हैं। हेड इंजुरी, जैसे पेशेंट आया था एम्बुलेंस में, विद इन स्पैन ऑफ 7 days आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू करनी है हेड इंजुरी में, ताकि आप उसमें काफी रिजल्ट दे सकते हैं। हेड इंजुरी हुई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, कर्नियोटॉमी हुई, पेशेंट वाज अनेबल टू वॉक, सो वी स्टार्टेड विद्याकर्मा। We did Vidyakarma for at least 45 days, regular 45 days Vidyakarma, and we started some medicine. Within a span of 40-45 days, patient was unable to walk and go from here and there, and he could resume his daily activity. So this is the magic of Vidyakarma and Agnikarma. And we also did उसका जो क्रैनियम निकाला था, फिर से वो हमने उस जगह पे लगवा दिया, और वो अभी गाड़ी भी चलाता है, उसको एक बच्चा भी हो चुका है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो है, एम्बुलेंस से ऑटो तक हमने उसको लेके आए हैं, और वो अभी तो प्रॉपरली नॉर्मल फंक्शन में। फ्रैक्चर के पेशेंट आते हैं, फ्रैक्चर के पेशेंट, जैसे ये बच्चे को फ्रैक्चर हो चुका था, तो फ्रैक्चर होने के बाद हम देखते हैं डिस्प्लेस्ड है, अनडिस्प्लेस्ड है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है। सो बेसिकली वहां पे प्लास्टर करना चाहिए था, बट ही इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट, सो प्लास्टर वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बिकॉज आफ्टर द प्लास्टर करने के बाद क्या हो जाता था, वो उसके मसल डेड हो जाते थे। सो we started Ayurvedic treatment, and within a span of 3 days, he resumed his all the activities, and he started feeling well. And within a span of 15 days, his fracture got healed. It was hairline fracture. डेथ फेयर के केसेस आते हैं, जैसे कि लड़का आया था 2018 में, उसको कहा गया था कि केस ऑफ स्पाइनल एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ही विल नॉट वॉक। उसको उठा के लेके आए थे, और ये फोटो ऐसी थी कि उसको पकड़ के फोटो निकालना पड़ता था, बिकॉज ही वाज अनेबल टू स्टैंड प्रॉपरली। सो वी डिड ट्रीटमेंट ऑन हिम फॉर ईच मसल, हैंड के मसल्स, बैक के मसल्स, नेक के मसल्स, एब्डोमेन मसल्स, लेग के मसल्स, सारे सारे करने के बाद वी गॉट द रिजल्ट। एंड उसकी शादी अभी उसने लड़की पटाई। सो दिस इज अ मैजिक, द मैजिक ऑफ विद्याकर्मा एंड अग्निकर्मा, मैजिक ऑफ एक्यूरेसी। Vidya related to the mouth,
रिलेट टू द टूथ पेन, दंत मांसानी वेदित, तो दंत मांस जहाँ पे वहां पे ये वेदन कर्म किया जाता है। अग्नि कर्म भी ऐसे किया जाता है। तो क्षौद्र तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्तिकता नाम, वहां पे दंत के यहाँ पे हम मोम रखा है और अग्नि कर्म करके उस मोम को हम जला रहे, तो वहां पे अग्नि कर्म होता है। लाक्षा से भी अग्नि कर्म होता है, वहां पे लाक्षा रख के उसको हम जलाते हैं, तो लाक्षा से अग्नि कर्म किया जाता है। कर्णशूल करने विकार हीलिंग लॉस सीएसएम एएसएम, ईयर पेन सीएसएम, कर्ण पृष्ठत्व अधः विदुर मर्म आश्रित, विदुर मर्म के ऊपर एक अंगुली हमें वहां पे वेदन कर्म कहा गया है। तो हीरिंग लॉस, छोटे बच्चे के जो हीरिंग लॉस होते हैं, ये इसमें बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जो कॉक्लियर इम्प्लांट कहा गया है, वी हैव मोर देन 60 to 70 पेशेंट्स ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट पर ईयर, सो वी डू विद द कर्म इन दिस पेशेंट एंड कॉक्लियर इम्प्लांट कैन बी अवॉइडेड with the help of with the karma. So but it needs the long term treatment, एक साल तक ट्रीटमेंट करनी होती है। इन दिस इमरजेंसी एक्यूरेसी भी और इम्पोर्टेंट होती है। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी करते समय यूटरस, यूटरस के बारे में विद्या कर्म होते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी देयर इज अ प्रोलैप्स ऑफ यूटरस and with the karma of medial one third we got the result within a span of 2 days, and after three setting it completely got inside। लैटरल वन थर्ड और मीडियल वन थर्ड में आके हम वेदन कर्म करते हैं, और ओवुलेशन के लिए भी अग्नि कर्म होता है। तो स्पैंसिक नर्व होती है वो हम लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद वो जो देवदार का चूर्ण हम लेते हैं और उसका धूपन कर्म किया जाता है। और वो धूपन करने के बाद 11 to 12 13 डेज में हम अग्नि कर्म करते हैं अनएवोल्यूटरी साइकिल में। और ये करने के बाद पेशेंट में हमें ओवुलेशन तुरंत मिल जाता है। तो इसके ऊपर एक हमारे स्टूडेंट का पीएचडी भी चालू है। तो इट वर्क्स फॉर बेटर देन क्लॉमिफेन। मॉडर्न मेडिसिन दे सकते हैं, अगर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कफवात संप्राप्ति में ये ओवुलेटरी अग्निकर्म काफी अच्छी तरह से काम करते हैं। टेनिस डिसऑर्डर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें मिलते हैं। टेस्टिस के एजोस्पर्मिया के, ओलिगोस्पर्मिया के, बच्चा नहीं हो रहा है, जीरो काउंट है, ऐसे इसमें ये विद्युत कर्म का फायदा ज्यादा होता है। तो ये जो पेनिस से शरीर के बाहर होता है उसके ऊपर विद्युत कर्म अग्निकर्म किया जाता है। और एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम करते हैं तो सब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सर्कुलेशन बढ़ने के बाद एट्रोपिक टेस्टिस, वेरिकोसील, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, टेराटोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अर्ली इजैकुलेशन, ये सारे व्याधियों में हमें ये इसमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पर जब तक हम देखते नहीं कहाँ कर्म युद्ध कर्म करना है, ये जब तक पता नहीं होता तब तक इसका कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ देखने से अच्छा लगेगा, करते समय बहुत एक्यूरेसी से करना होता है। जिनका इरेक्शन नहीं होता है प्रॉपर, वो ओवर मैस्टरबेशन की वजह से लिंग शैथिल्य आ जाता है, ऐसे सारे केसेस में हम ये विश्वकर्मा से रिजल्ट देते हैं विद इन स्पैन ऑफ 1 to 3 डेज। तो पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं, तो भारतवर्ष से पेशेंट आते हैं, उनको हम यहाँ पे 3 दिन रुकाने के लिए कहते हैं। और 3 दिन यहाँ पे रुकने के बाद 3 दिन कंटिन्यू विश्वकर्मा होता है और पेशेंट गेट रिजल्ट। मानस विकार, ये एजोस्पर्मिया का पेशेंट था, जीरो काउंट था। 23 में, 24 में भी जीरो काउंट था, और 25 में उसका 18 मिलियन हो चुका है, और उसको कंसीव भी हो चुका है, अभी बेबी भी हो चुका है। मानस विकार, मानस में इंद्रिय मन की गति प्राप्त करनी होती है। दिस 3 फेज ट्रीटमेंट। उसमें पहले फेज में हम इंद्रिय मन की गति प्राप्त करते हैं, और पहले फेज में हम भ्रूमध्य शंख लेते हैं। अपस्मार के केसेस होते हैं तो इनमें इसका फायदा होता है। ये डेली डेली 10 अपस्मार पर आवरली 10-10 फीट आने वाले पेशेंट के ऊपर हम काम करते हैं, और जिंदगी की फेट्स निकाल के देते हैं। ये पार अच्छी तरह से काम करता है। हाइपोक्सिक पेशेंट, हाइपोक्सिया में सेरेब्रल एट्रोफी होती है, पेशेंट बैठ नहीं पाता है, और डेवलप नहीं होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले होती है। ऐसे पेशेंट में हम विद्या कर्म शुरू करते हैं।
और ये शंख मर्म से लेके भ्रू मंद से लेके ये शुरू होता है, और प्रिसाइजली हर एक मसल हर एक माइलस्टोन के अनुसार होता है। तो उसमें स्टैंडिंग विद सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, वॉकिंग विद सपोर्ट, वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, अलग अलग प्रकार से डांसिंग, स्कूलिंग, सोशलाइजेशन, राइटिंग, हर एक माइलस्टोन के लिए विद्या कर्म होता है। और सिंगिंग, जिसने कहा था कि ये जिंदगी भर ठीक नहीं हो जाएगी, वो प्रॉपर अपनी लाइफ कर रही है, स्कूल जा रही है, सब कर रही है। ऐसे केसेस, डिफरेंट टाइप का केसेस हमारे ओपीडी में रेगुलर होते हैं। ध्यान में रखना, तीन दोष होते हैं, वात पित्त कफ, इनको ही संभालना होता है हमें। जैसे कि कफज है, हर डिसीज में हमें दोष देखने होते हैं, तो इसको हम देख रहे हैं और ये हिल नहीं रहा है, शांत है, कपत जैसा है, जो चाहे करो करो, मैं मेरा करके जा रहा हूँ। वातज होता है, वातज हो गया तो इसमें विद्या कर्म का सीक्वेंस बदल गया। भीरू होते वातज, पित्त वाले क्रोधी होते हैं, उनको पित्त दोष के अनुसार विद्या कर्म किया जाता है। वन एडवाइस एज इट इज, कोई अपनी मन की बात मत लगाओ, जो ग्रंथ में दिया है वही होता है। ध्यान में रखना, आयुर्वेद में रिसर्च ऐसी कोई बात नहीं होती। आयुर्वेद ही एक खुद एक कंप्लीट शास्त्र है, तो इसका कोई नुस्खा लेके रिसर्च करना, ये इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली अगर इसका अगर करना है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज में ये डिफरेंट कैसे काम करते हो, कैसे पैथोफिजियोलॉजी होता है, तो उसके ऊपर हमें देखना चाहिए। एक एडवाइस होता है कि एज इट इज डू विद कर्म, डू पंचकर्म, डू नस्य, लेकिन एज इट इज जो बताया है, अपने मन का कुछ लगाना नहीं है, क्योंकि ऑल हमारे सारे संहिताकारों ने सब प्रोबेबल सब करके ही लिखा है। ध्यान में रखना, जैसे कर्म इंद्रिय, बच्चों को एस्पेक्सिया हो चुका था, हार्ट अटैक आया था, बच्चा 30 मिनट डेड था, रिवाइव किया गया उसको, चल नहीं पा रहा था। तो अभी वमन हो शुरू हो चुके हैं हमारे क्लिनिक में। ये वसंत ऋतु में कहा गया है कि छोटे बच्चों में वमन करे, वमन करे, वमन करे, माता को वमन दे, धात्री को वमन दे, बच्चों को वमन दे। तो ये वमन देने के लिए इतने डरते हैं, बड़े लोगों को देते नहीं, तो छोटे बच्चों में कैसे वमन दिया जाएगा। तो हमारे क्लिनिक में ये वमन होते हैं, आयुर्वेद के सारे सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं, और वमन के बाद बच्चों में बदलाव दिखते हैं, वॉकिंग भी सपोर्ट आ जाता है, डिफरेंट टाइप का हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि सीपी का एक बच्चा था, उसको हमने चिकित्सा की, 15 दिन बाद उसका नेक होल्डिंग हो चुकी, 1.5 महीने के बाद वो उठा रहा था, 2 महीने के बाद रोलिंग हो शुरू हो चुकी उसकी, 3.5 महीने के बाद आइडेंटिफिकेशन कर रहा था डिफरेंट टाइप, 5 महीने के बाद अच्छी तरह से, और 7 महीने के बाद वॉकिंग शुरू हो चुकी थी उसकी। ये वमन करते हैं हम। कंटिन्यूस तीसरा साल है इसके वमन का, और बच्चे वमन करके हमें रिजल्ट देते हैं। अब इसको हमने परसों नॉर्मल स्कूल में उसको एडमिशन दिलवा दिया है, एंड टिल डेट मोर देन 1000 पेशेंट को हमने सीपी ऑटिज्म के स्कूल से डिस्चार्ज लेके नॉर्मल स्कूल में उनको भर्ती किया है। डोंट आस्क, डोंट फियर, आस्क सीनियर। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्यूमर के केसेस आते हैं, जो पोस्ट ऑपरेटिव के बाद भी रिकरेंस होता है। तो ऐसे केसेस में ये छोटे बच्चों को कहा गया था जिंदगी भर उसका पाय काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे ट्यूमर की वजह से पूरा डैमेज हो चुका है। तो धीरे धीरे उसको चेंजेस आना शुरू हो गया है। विद्याकर्मा एक, इट इज नॉट ओनली पेन मैनेजमेंट टेक्निक, इट इज अ डिसीज मैनेजमेंट टेक्निक। और उसको स्विमिंग करना, उसको लाइफ में जगह पे आना, यहाँ हम कार्य करते हैं। नेत्र विकार में भी ये विद्याकर्मा काफी अच्छी तरह से काम करता है। नेत्र विकार जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सब कंजक्टाइल हेमोरेज आ चुका है पेशेंट को, और इसको हम विद्याकर्म करते हैं। विद्याकर्म अकॉर्डिंग टू नेत्र के पटल के अनुसार होता है। 1 घंटे में इतना सब हम नहीं बोल पाते, लेकिन मैं स्पीड से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हर पटल के हिसाब से ये विद्याकर्म होते हैं, और दोषों के हिसाब से होता है, सीक्वेंस होता है, उसकी एक्यूरेसी होती है। ऐसे नहीं कि एक वीडियो देख ले और वो करने गए, और पेशेंट को हमें ये ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। विद द मिरेकल हमारे डिफरेंट डिफरेंट मिरेकल हमें विद्या के साथ मिलते हैं।
जैसे कि ये पेशेंट है, इस पेशेंट को टोसिस था, उसको एक ही आंख घूम रही थी, दूसरी आंख घूम नहीं रही थी, तो विद्या कर्म किया हमने, और आफ्टर सम डेज शी गॉट 100% रिजल्ट विद इन स्पैन ऑफ 40 days, नो अदर ट्रीटमेंट, नथिंग। इसीलिए ऐसे हम मॉडर्न के इक्विपमेंट का फायदा लेके, जैसे ब्लीडिंग हुआ यहाँ पे, एक 4 दिन में उसके ब्लीडिंग चले गया। फेशियल पैरालिसिस होता है, फेशियल पैरालिसिस में हम युद्ध कर्म और अग्नि कर्म करके पूरा रिजल्ट देते, 100% रिजल्ट आ जाता है। इमरजेंसी होती है छोटे बच्चों की, तो उसमें भी रिजल्ट आ जाते हैं। अग्नि कर्म, ये विद्या कर्म के बारे में हो गया। ये रूट के हिसाब से होता है, S1 L5 L4 रूट देखे होते हैं, और रूट के हिसाब से वहां पे अग्नि कर्म किया जाता है। नी जॉइंट में भी जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वेदनाएं होती है, वहां पे हम अग्नि कर्म करते हैं, और अग्नि कर्म के बाद वेदना शमन हो जाता है वहां पे। फिर इस पर है, इस पर में मृतिका का अग्नि कर्म किया जाता है। मृतिका हम शलाका लेते हैं, मृतिका शलाका गर्म करते हैं, और शलाका गर्म करने के बाद यहाँ पे पेशेंट के यहाँ पे जहाँ पे स्पर है वहां पे शलाका लगाते हैं। और लगाने के बाद वहां पे जो स्पर आ चुका है, उस पर कम होते में दिखता है। यहाँ पे मृतिका शलाका ही इस्तेमाल करनी होती है, यहाँ पे बाकी शलाका का उपयोग नहीं होता स्पर कम करने के। कौन कौन में हम पूरी तरह से वो कौन को जला देते हैं, दैट इज अग्निकर्म, प्योर अग्निकर्म। कपोत वर्णता जैसे करते हैं, और यहाँ पे जला के वो अग्निकर्म से वो जल जाता है। फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के यहाँ पे गुड़ से हम अग्निकर्म करते हैं। विशेषता डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक फ्रोजन शोल्डर हमें देखने को मिलता है, और गुड़ लिया जाता है, गुड़ गर्म किया जाता है, गुड़ से अग्निकर्म किया जाता है वहाँ। हर्निया, हर्निया में अगर सर्जरी नहीं करना है किसी को, तो वलयाकृति शिला का इस्तेमाल करना किया जाता है। और जो भी मसल पार्ट लूज हो चुका है, उसमें किया जाता है। कॉस्मेटिक अग्निकर्म जहाँ पे मांसवृद्धि हो चुकी है, वहां पे वो अग्निकर्म करके वो निकाला जाता है। जॉन्डिस, जॉन्डिस में भी हम अग्निकर्म करते हैं। राइट एनाटॉमिकल सब बॉक्स है, वहां पे अग्निकर्म किया जाता है, और उससे ठीक हो जाता है। सेम ट्रीटमेंट, डिफरेंट ट्रीटमेंट जो बालों में है, टकले आते हैं बहुत सारे, और उनको हम विद्याकर्म अग्निकर्म करते हैं। तो उनको जैसे पहले ऐसा होता है, और बाद में वो पेशेंट अच्छी तरह से पूरी तरह से बाल आ जाते हैं, 4-5 महीने करना पड़ता है। जैसे एलोपेशिया है, यहाँ पे इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, स्टेरॉइड लगा लगा के परेशान हो जाते हैं पेशेंट लोग। तो उनको प्रॉपर अगर हम गाइड करते हैं, तो हम ऐसे उनको रिजल्ट दे पाते हैं। परफेक्ट विद्याकर्म होता है, 6 पॉइंट होते हैं सर के ऊपर। एक एक बूढ़ी औरत थी, उसको हमारे स्टूडेंट में उसको बाल लाए थे। ये विद्याकर्म एक्यूरेटली काम करता है, इसलिए हमें ऐसे मैजिकल रिजल्ट मिल जाते हैं, प्रैक्टिस बढ़ जाती है, स्टेटस बढ़ जाता है। और ये सारे लोग जो है बॉलीवुड के एक्टर्स है, जिनके ऊपर हम विद्याकर्म करके उनके बाल लाए हैं। हमारा एक ही एम होता है, आयुर्वेद की जो परंपरा है विद्याकर्म अग्निकर्म की, सबको आ जाए, सबको समझ में आ जाए। मेरा नाम वैद्य चंद्र कुमार देशमुख, आपने आज मुझे इनवाइट किया लेक्चर देने के लिए, तो आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, और आप सभी को ऑल द बेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for the very innovative
and motivating speech and the class. So requesting all the delegates, if any have any queries, you can put in the chat box. So I think one question came. So can I go to question and answer session, sir? Yes, yes. Sir, one question came. What is the reference of Vamana Karma in children and what method is used by? आप चाहिएगा कोई भी रेफरेंस हमारे ग्रंथ में दिया गया है, कुकुन के वमनम, बाल रोगे वमनम ऐसे आए हैं। बाल रोग, एक भी बाल रोग ऐसा नहीं बताया गया है जो वमन के बिना नहीं होता है। तो लेकिन हमारे कॉलेज में या हमारे सोसाइटी में बच्चों के वमन की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होती है। तो हम यहाँ पे पुणे पे करते हैं वमन छोटे बच्चों के, 70-80 बच्चों के एक महीने में वमन होते हैं। तो बच्चा जन्म के लेने के बाद दाई को वमन देना है, बच्चों को वमन देना है। हर व्याधि में वमन हमारे काश्यप संहिता में, वाग्भट में, चरक में, सब जगह पे आया है। सो यू कैन गेट द रेफरेंस वहां पे। ऐसे मुझे रेफरेंस ऐसा चरक संहिता चैप्टर ऐसा रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन वो सारे संहिता में उसके रेफरेंस मिलेंगे आपको। अगर आप काश्यप संहिता निकालते हो तो आप लेहन अध्याय में भी वमन करने के बाद ही लेहन आया है। क्षीर विकार आया है तो क्षीर विकार में भी आपको वमन करने के बाद वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ चिकित्सा आई है। पक्का ऐसा व्याधि है जहाँ पे भी आया है कि जो कफवाता जाकर रहेगा वहां पे पहले शोधन करना है। शोधन मीन्स वमन या विरेचन करना है, लेकिन छोटे बाल रोग में वमन ही देना है, और वमन देने के बाद बाकी सारी चिकित्सा आई है। तो बेसिक शोधन ही होता है छोटे बच्चों में, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है प्रैक्टिस में, इसलिए हम वो पीछे पड़ जाते हैं। Thank you, sir. One more question is actually for Dr. Naman Verma. Is derma rolling and Viddha karma same in hair fall treatment? डर्मा रोलर में क्या होता है, वहां पे वो निडल में होल नहीं होता है, इट इज सॉलिड निडल, एंड वो डर्मा रोलिंग होता है, तो एक्यूरेसी नहीं हो जाएगी, यानी कहीं पे भी कर रहे हो ऐसा हो जाएगा। सो आई ऑलवेज प्रेफर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से ज्यादा रिजल्ट आते हैं। डर्मा रोलर तो घर पे भी कर सकते हैं। सो यू आर अ डॉक्टर, यू आर आयुर्वेदिक डॉक्टर, सो देर इज नो सच थिंग इन आयुर्वेदा एज अ डर्मा रोलर वगैरह। आपको अगर नशे से भी बाल आते हुए देखते हैं, आपको विरेचन से भी आते हैं, सो गो फॉर द बेसिक ट्रीटमेंट, गो फॉर द एक्यूरेट ट्रीटमेंट, गो फॉर द पिन पॉइंट ट्रीटमेंट। वेग ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना। Okay, thank you, sir. The locations of Viddha karma are same as Siraveda location mentioned in Susruta Sharira. Siraved and Viddha karma are not different. If there is a big vessel, then go for a Rakta Mokshana. जस्ट लाइक हम जाते हैं, जैसे कि यकृत विकार में राइट कॉर्पस एल्बो जॉइंट के यहाँ से हम विदन रक्त मोक्षण करते, सिरावेद करते। लेकिन अगर हम नासाग्र के यहाँ पे अगर सिरावेद कहा गया है तो वहां पे कैसे करेंगे? सो सूक्ष्म शस्त्रमापी अव्यक्तम स्रवेद ऐसा कहा गया है। सो विद्या कर्म एंड सिरावेद इज द सेम। I think, sir, कुछ network problem आया है, तो I'll continue from here. One more question is, what was that knife-like instrument during that Prachan and Vidya video? It is a one 24 knife-like number instrument. surgical blade, surgical blade, 24 number. Surgical blade only, no, sir? Yeah. And we have some questions in our chat box, so I will take from that chat box. लिम्फेडेनाइटिस पर विद्या कर्म कहाँ करना है? क्यों करना है? ऐसा व्याधि दिया नहीं ना। लिम्फेडेनाइटिस मेनी डिसीज के थ्रू आ जाता है, ग्रहणी में आ जाता है, ज्वर में आ जाता है, रक्तपित्त में आ जाता है। तो फाइंड द बेसिक डिसीज अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा एंड देन ट्रीट द पेशेंट। ऐसे हम सिम्टम के ऊपर नहीं कर सकते, ध्यान में रखना। ऑलवेज फाइंड द बेसिक कॉज। अगर किसी को श्वित्र होता है, हम ऐसा नहीं बोल सकते ल्यूकोडर्मा में कहा करना चाहिए। श्वित्र अर्श में भी आया है, श्वित्र ज्वर में भी आया है, प्रतिशाय में भी आया है श्वित्र। श्वित्र एक अलग नाम का डिसीज भी आया है। तो फाइंड द एक्यूरेट संप्राप्ति एंड आफ्टर देन डिसाइड वेयर टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेयर फॉल में कितने दिन में विद्या कर्म करना है? अरे बाल आने तक करो, For how many days we can? 10 दिन में एक बार करना है। So 10 दिन में एक बार करना है। Okay. Then one more question is, can we do Vidya karma for retinitis pigmentosa and where? हाँ, retinitis pigmentosa is genetic disease. After certain age it get aggravated और वहाँ पे rods and cones है वो degenerate होना शुरू हो जाते हैं।
So RP, basically there is a no treatment in modern medicine for retinitis pigmentosa, but in Ayurveda we have more than 100 cases per year. We do Vidyakarma in such cases. We just preserve that retina and वहाँ पे रक्त जो है वो अगर हम प्रॉपर तरीके से पहुंचाते हैं रेटिना तक तो वहां पे रीजनरेशन बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन डीजनरेशन हम स्टॉप कर सकते हैं। सो विजन जिन लोगों को है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डायग्नोस्ड है, ऐसे पेशेंट को विद्याकर्मा से हम डिसीज प्रोग्रेशन स्टॉप कर सकते Okay. Sir, one more question is there. Can you elaborate more on procedures laid in Shalakya Tantra? हैं। तो कम से कम 6 आवर्स लगेंगे मुझे, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द मंडल हो जाएगा। तो आई वाज होपिंग कि जब मुझे कॉल आया था सर का, आई वाज होपिंग टू कम देयर, बट ये वेबिनार था, बाद में समझ में आया मुझे। तो ये इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल मैंने कितने फास्ट में लिया है सारा, क्योंकि हर एक स्लाइड को एक 10 to 15 मिनट चाहिए, लेकिन ड्यू टू द टाइम। सो वन वन थिंग इज दैट इन द यूट्यूब चैनल नेम जो चंद्र कुमार देशमुख यूट्यूब का चैनल का है, वहां पे इसके बारे में एक पूरा वीडियो है 6 आवर्स का। अगर किसी को चाणक्य में इंटरेस्ट है तो वहां पे पूरे हर एक डिसीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया। Okay, so I will request all our participants, they can subscribe Sir's channel and you can find many things there. I have also subscribed and he has very nice videos, so you can find there lots of information. And sir, मेरा एक personal मतलब सबके तरफ से ये question है, do we have any book like reference के लिए कि exact position कहाँ होना चाहिए विद्याकर्मा का? ऐसा कोई book है जहाँ पे हम लोग? The name of the book is Vidyakarma and Agnikarma itself. The book is written by the Vaidya R.B. Gokte sir. You can purchase this book from his website. The name of the website is goktememorial.org. So I will request our team members to please put this website in our group so that our आप अगर मुझे बताओगे तो आपके ग्रंथालय में मैं भेज दूंगा कुछ कॉपीज। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. So Thank you so for much. now, yeah, Sheena sir is Any more back, question, so ma'am? you can take the charge. I think Ma'am, all any our more questions are over now. Okay. Yes. So we don't have more Thank questions. you. Okay, thank you so much, sir. Actually, for your busy schedule, actually, you came here and actually I trying to contact you, but I understood actually from the session, I understood actually you are that much busy. So anyway, from that busy schedule, also you trying to come here and give a ignition. Actually, that have to tell here actually that it's a Guru Shishya Parambara already mentioned. Actually, this type of that jnana actually directly take from Guru and Shishya. That is exactly, it is correct. Only actually in limited time, it is very difficult to explain all the things, marmas, that everything. So maximum, but sir covered all his experience. The boss experience is shared, and he shared all the treatment modalities, whatever the diseases can manage with Ayurveda. That is shown. That is a motivation to the upcoming students also. With Ayurveda can manage the things. That is a very good initiation, sir. Thank you so much for your valuable speech. Then I would like to thank all our respected chairman, sir, Dr. Shailendra Singh Yadav, sir, and chairperson, ma'am, Dr. Sunita Yadav, ma'am, for the continuous motivation and inspiration for this Prabodhini webinar series. And also, I would like to thank respected principal, sir, Dr. Manjunatha NS, and Vice Principal Sir Dr. Tintu Rambao Sir, and also our Prabodhini team, that Dr. Preethima So ma'am from Sri University, and also Dr. Nihar Ranjan Sir, also myself, Dr. Shinaz, and also all the teaching faculties from Sri Babu Singh Jai Singh Ayurveda Medical College, and respectively, one more thing, all the delegates who are continuously attending the webinar. Actually, today the timing is a little morning time. That's why very less participants came. Otherwise, we will get much more participants in the Prabodhini series. So also we are sharing this YouTube link to the YouTube. So remaining registered participants will get the video later also. Don't no problem. So thank you so much once again, sir. You are given much more motivation and much more
give an idea that the Ayurveda, that Agnikarma, then Marma Chikitsa, these are hidden type of shastras nowadays. But majority people are practicing also. But this have to take it, and majority people, students also telling that Ayurveda is very slow. If given Kashtaushadis, and also it is very slow. But this is that motivation get to them. We can use the Kashtaushadis for the treatment. Also the Panchakarma, Agnikarma, Marma Chikitsa, this all you can use for the good treatment. Thank you so much, sir, once again, on behalf of Sri Babu Singh Jai Singh Ayurveda Medical College and also the Prabodhini team. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Srinas, and also, sir, he explained very nicely, and it was a fabulous session. I hope all our participants got to learn something new and practice something new in their field also. So, with this, we end our scientific session, and we will move forward with our national anthem to end today's webinar. So with this, we end our today's 30th Parva of Prabodhini webinar series. You all will be receiving your e-certificates within 7 working days. So please be patient and please stay with us in our WhatsApp group. So we will intimate you the next webinar information in that group only. And thank you so much and namaskaram to all.